بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو، بیان کو مکمل سننا ہے آخر تک۔ اچھے لگے تو لائک کر دینا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی۔ اللہ میاں کہتا رہا نکلا، آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا۔ کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے، جانور کھا گئے۔ 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سمان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہے وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتہ چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو،
खूबसूरत दुल्हन हो, शाम को बातें शुरू कर दो, सुबह की अजान अगर मुअज्जिन देना, दोनों को दोनों यूं कहते हैं अभी से सुबह हो गई। इतनी बड़ी रात का उनको पता नहीं चलता, अपनी इन हिमाक में, अपने जोश मोहब्बत में, अपने मशगूलियत में। तो जिन लोगों को कुरान मजीद पढ़ने का जायका पड़ जाता है, 100 दुल्हन की मोहब्बत एक तरफ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में घर कर ले, जिसके दिल में अपना कलाम उतार दे। और मैं कहता हूं खुदावंद करीम अपने कुरान मजीद की एक एक आयत को जिसके खून के कतरे कतरे में बसा दे, उसके लिए पूरा कुरान खत्म करना क्या मुश्किल है। कलंदर तो यहां से बनते हैं, कुरान से कलंदर बनते हैं, दुर्वेश कुरान करीम से बनते हैं, फकीर कुरान मजीद से बनते हैं, वली कुरान मजीद से बनते हैं। ये तो तुम्हारा जमाना है, चरस पी पी कर वली बनते हैं, भांग पी कर वली बनते हैं, चंडू पी कर के वली बनते हैं, और शराब पी कर के वली बनते हैं, नंगे फिर के वली बनते हैं, नमाज रोजे को ठुकरा कर वली बनते हैं। किसी जमाने में तो वली वो हुआ करते थे जिनकी अम्मा पूरा पूरा कुरान मजीद एक एक दिन में खत्म किया करती थी। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए, बड़े खूबसूरत हसीन बच्चा अल्लाह ने दिया, मगर इतने रोए कि खामोश नहीं करते। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, मुबारक हो लड़का पैदा हुआ। एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई, बोली शाह कलंदर के बाप से कहा फखरुद्दीन शाह मुबारक हो। और ये उस जमाने की बातें हैं जबकि सैयद जिना नहीं किया करते थे, सैयद सोले हुआ करते थे, सैयद सरदार हुआ करते थे, सैयद सखी हुआ करते थे, सैयद कुरान पढ़ता था, सैयद तमाम चीजों से बचा करता था। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हजरत जी मुबारक बात तो बिल्कुल बजा है, मगर एक तो बताओ, जब से लड़का पैदा हुआ बस रो रहा है, सारे घर में तूफान मचा हुआ है, बिल्कुल खामोश नहीं करता, मैं क्या करूं। जिन लोगों पे इत्काद हुआ करता है मुसलमानों का, बच्चों पे दम कराया करते हैं अल्लाह वालों से। शाह फखरुद्दीन अपने बेटे को झोली में उठाकर उस अल्लाह वाले के सामने ले आए कि दम करें आप, ये रोता बहुत है। उन्होंने दम करने के बजाय जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया। बोली शाह कलंदर जो बच्चे थे अभी 2-4 दिन के, चुप हो गए। तो शाह फखरुद्दीन ने बोली शाह कलंदर के वालिद ने उस बुजुर्ग से यूं कहा कि हजरत ये दम मुझे भी सिखा दो, क्या पड़ा है, अगर आप चले गए और ये फिर रोने लगा तो मैं आपको कहां से तलाश करके लाऊंगा, कोई मस्जिद के मुल्ला तो आप है नहीं जो फिर पकड़ लाऊंगा। मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो सूरत बताओ, मुझे वो कलाम बताओ जो आपने पढ़ा है और ये खामोश हो गया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे और फखरुद्दीन तुझे मालूम है, तू जानता है इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और वो एक खत्म कुरान मजीद का रोजाना पढ़ती थी, इसको पेट में लेकर सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करती थी और कुरान मजीद के नूर का और इस बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब ये पैदा हो गया, अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, पलीत हो गई, उसने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, खसलत वाली की खसलत पूरी ना हुई, रोए ना तो क्या करे। मैंने एक ऐत इस कान में पड़ी, एक ऐत उस कान में पड़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसे उसकी सही खुराक मिल गई, उसकी ग़िज़ा मिल गई, जो ग़िज़ा बनी रही रात दिन कलाम इलाही का नूर और बोली शाह कलंदर की रूह और जिस्म। जिस कलंदर को उसकी मां ने इस तरीके से पेट में रखा हो, एक एक खत्म पूरा कुरान का पढ़ती हो, इशराक और तहज्जुद तक के नफिल पढ़ती हो, एक वक्त भी गफलत में ना गुजारती हो, खुदा की कसम इस गोद से फिर कलंदर पैदा क्यों ना हो। आजकल कलंदर बनना बड़ा सौखा है, कब्रिस्तान के किनारे पे जाके एक कुल्ली डाल लो, 2-3 नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते पाल लो,
दो चार लल्ले तड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और कमाल है, मुझे तो एक और बड़ा दुख हो रहा है, लोग गुस्ताख हमें बताते हैं। मैं परसों लाहौर गया था तो कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार पे ज़ियारत के लिए जब लाहौर जाता हूं तो हमेशा जाता हूं। खुदा की कसम अब भी निराली खुशबू आ रही थी, मगर ये मुझे मालूम करके बड़ा दुख हुआ कि कहां गए ये जर्नैल और कहां गए ये कर्नैल और कहां गए ये एसपी डीएसपी और ये एमडीआ और ये कमेटी। हर शहर में गंदगी का डीपू कब्रिस्तान को बना लिया गया। मस्जिद चुंगी से गुजरकर जब हम कब्रिस्तान को गए, कब्रिस्तान के दरमियान में सड़क पर गंदा मिला जबरदस्त बदबू। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्दों के ऊपर पखाने फेंकते हो जो बोलकर जवाब नहीं देते, जो बोलने की ताकत नहीं रखते, उन पे गंदगी फेंकते हो। ये 14 नंबर के जाके पीछे देखो जहां कब्रिस्तान है, तमाम शहर का गंद उठाकर कब्रिस्तान में लाके फेंका जाता है। ये मुसलमान है जो मुर्दों की तौहीन करते हैं। वहां भी मैं हूं और बेअदबी ये करते हैं। युवा कब्रिस्तान में बैठकर खेलते हैं, शराब कब्रिस्तान में बैठ के पीते हैं, बम का रगड़ा सारा दिन कब्रिस्तान में लगता है। इन मुर्दों से पूछो अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो इन लोगों को मार मार कर इनका वो बरकस निकाल देते। बल्कि मुझे तो ऐसा मालूम होता कि जब मैं वहां से गुजरता हूं तो हर एक मुझसे ये कहता है सबके सब है राह रवे कुए फना, सबके सब है राह रवे कुए फना, जा रहा है हर कोई सूवे फना, और बह रही है हर तरफ जूवे फना, आती है हर चीज से बूवे फना। वो अहले कब्र कब्रिस्तान वाले मुझे और तुझे आवाज दे दी करके कहते हैं और शर्म करो गैरत करो, कभी हम भी तुम्हारी तरह यूं ही दुनिया में गंदलाया करते थे, अफसर बने फिरा करते थे, डॉक्टर बने फिरा करते थे, हम बड़े बड़े ताजिर थे, हम बड़े बड़े बलिस्टर थे, हम बड़े बड़े वजीर थे। आज हालत ये बन गई जो मिसाल तो दिए खुशी बया दम गुफ्तगू थे बाहर फिशा, वो पड़े हैं आज खामोश यहाँ के दहन में गोया जुबान नहीं। वो कहता है तूने तो किसी का पखाना गंद लाकर मेरी कब्र पे फेंक दिया, अगर तू मेरी कब्र पे बैठ के गंद करे तो मैं तुझे मना करने वाला नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान से गुजरो, सोचा करो इन मिट्टी के लाखों ढेरों के नीचे हमने आना है, डरा करो, खौफ खाया करो, याद किया करो इस गड़े को। मगर नहीं, एक बीमारी चला रखी है लोगों ने अपने पेट का धंधा चलाने के लिए। मैं बतला रहा हूं कि ये कलंदर की तरबियत हो रही है, पूरा कुरान करीम अम्मी जान खत्म करती है, उधर बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बगैर जिंदा नहीं रहता। जो बोली शाह कलंदर 3 दिल 2 दिल कुरान करीम सुने बगैर नहीं गुजारता, उसने 36 साल नमाज के बगैर कैसे गुजार लिए, कैसे गुजार दिए उसने। फिर ये बोली शाह कलंदर जवान हुआ, फिर ये पानीपत ही में रहे, 20 बरस तक दारुल इफ्ता में बैठकर दिल्ली में फतवा दिया, फिर मजसूबाना कैफियत गालिब हो गई। लिखा है सवाने हयात में, और जिम्मेदारी से कहता हूं, ना खाली होती थी, ना ढोल, ना ढपला, ना तबला, ना फरंगी, ना हारमोनियम, कुछ नहीं होता था।
جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں، اصل نام ہے شرف الدین، بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے، دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں، چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما، عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب، جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی۔ شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورت یوسف کی تلاوت شروع فرما دی، سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا، چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی، کلام خدا کا، جو دل میں آ گئی ساری جیل، اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا، اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ شاہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے۔ تو جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی، وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا، کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔
तमाम सहाबा किराम बद्र और हुनैन में, खंदक और ताबूक में, बड़े बड़े मार्कों में नमाज कज़ा नहीं करते। अगर मुसलसल जंग हो रही है, नमाज तो क्या कज़ा करना, जमात भी कज़ा नहीं करते। एक सफ, एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, दूसरी जमात काफिरों के मुकाबले में तलवार चला रही है, गर्दनें काट रही है, अपनी गर्दनें कटा रही है। एक रकात ये पढ़कर चले गए, दूसरों ने आकर दूसरी रकात पढ़ ली। इस तरह से अल्लाह मियां ने फरमा दिया, और मेरे बंदो और मेरे नबी के गुलामों, चाहे तुमने किबले से पीठ फेर ली, चाहे किबले से तेरा मुंह फिर गया, तो घोड़े पे सवार भी हो गया, तेरी अत्तहियात भी चली गई, तेरा रुको सजदा भी चला गया, लेकिन गर्दनें तूने लोगों की काटी, लहू बहाया, अपनी गर्दन कटा दी, गर्दन कटा कर कीमा बनवा दिया। और मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे अब भी नमाज ही में समझता हूं। वरना मसला यह है कि किबले से मुंह फिरा और नमाज टूट गई। अमने कसीर, अगर तुमने एक रकात में 3 मरतबा खुजा लिया, खारिज कर ली, तो नमाज टूट गई। मगर यहां तलवारें चलाने से नमाज नहीं टूटी। क्यों? इसलिए ये लड़ाई नाम तेरा है और मेरे बंदे, लड़ाई असल में मेरी है। नमाज भी मेरी, तू भी मेरा, लड़ाई भी मेरी, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई। उस जमाने में तमगैनी मिला करते थे, तमगैनी तकसीम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी दौलत नहीं मिला करती थी। वहां तो सिर्फ एक बात थी, तशरीफ फरमा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आता है कि नौजवान यूं झोली में अंगूर हैं, यूं झोली में अंगूर हैं, और 1-2 दाना यूं हाथ में है, यूं खा रहा है। झोली अंगूरों से भरी हुई है, हाथ में 2-4 दाने हैं, खा रहा है। हुजूर के सामने आया, कहने लगा ये क्या है, ये क्या लड़ाई है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल और काफिरों की जंग है। इधर वाले क्या कहते हैं? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद करीम के बाद नबी कोई नहीं। ये यूं कहते हैं, आप यूं कहते हैं कि हाँ, कि वो कहते हैं कि हर कोई कुछ कर सकता है। मुसलमान नहीं था पहले से। कहने लगा फिर गवाह हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है। और वो जो झोली में अंगूर थे वो ये नहीं मेरे तेरे जैसा होता, पहले यूं पल्ले में बांधता, फिर काम आ जाएंगे, फिर यूं कंधे पे डालता, शायद किसी वक्त काम आ जाएंगे। झोली यूं पकड़ रखी थी, यूं छोड़ दी, सारे नीचे गिरा दिए, और कहने लगा अगर इस जंग में जाकर कोई मारा जाए तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया गवाह हूं, जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। झोली के अंगूर फेंक दिए, हाथ के फेंक दिए, और जो हलक में था इतना भी अच्छा ना समझा के मुंह से चबाकर नीचे तो उतार लूं, ये उंगली हलक में देकर निकाल दिए और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, फिर इंशाअल्लाह मेरे नबी आज मेरी तेरी जन्नत में मुलाकात होगी। और गया है। एक सहाबी वापिस आ रहा तलवार तीर उठाने के लिए, पूछा किधर आए? कल कुछ काम कहो हो। अरे आगे बढ़ो, इस पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर ये नौजवान आगे बढ़ा और काफिरों के झमघटे में जाकर हमला किया है। कितने काफिरों को कत्ल करता हुआ इसके बाद टुकड़े कर दिया है। इधर कलमा पड़ा और उधर शहीद हो गया। और खुदा की कसम कितना बड़ा यकीन आया उसको अपने नबी की जुबान का। अंगूर फेंक दिए, हाथ के अंगूर फेंक दिए, मुंह में जो थे वो निकाल कर फेंक दिए। और सिर्फ इस बात पर ये नहीं कि चलो कलमा पढ़कर बैठ जाऊं, गया है और जाकर टुकड़े करा। आज हमें अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह के भर दिए हुए कलमे पे ईमान और यकीन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन नहीं। अगर हमारे यकीन सही हो जाए तो ये सारे निजाम आलम को हम ठीक कर सकते हैं, पूरी दुनिया का निजाम सही हो सकता है।
मगर हमारे यहाँ तो तरीके कार ही कुछ और बन गए ना। मुबारक हो आप लोगों को भाई, आप सब लोगों ने गाना सीख लिया है। किसी मुल्क को अगर गाने वालों की जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता कायम करें, मैं सप्लाई किया करूंगा। कुरान शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है, दुरूद पाक पढ़ते हुए फांसी लगती है, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए घोटू लड़ता है, नमाज पढ़ते हुए फांसी लगती है, और गाना गाते हुए सब मिल करके गाओ, छोटे बड़े गाओ, सारे गाओ। वो पहले नचाया करता था, ये गवाता है, दोनों का जोड़ हो गया। उसने सबको नचाया, वो खुद भी नाचता था और इसने खुद भी गाया और सबसे गवाया, गाओ भाई गाओ, सुभान अल्लाह। मुसलमान बैरूत में मुसलमान कट रहे हैं, हम गा रहे हैं, यही हम गा रहे हैं। मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमसे डूब के नहीं मरा जाता। तुमने ये तरीक़ेकार सीखा किससे है, तुम कहां से निकाल के लाए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का हाल देखो, कहता या रसूलुल्लाह ये किस्सा क्या है? उन लोगों को लड़ाई काहे की, मकान की कि नहीं, खानदानी लड़ाई है कि नहीं, लड़ाई क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की लड़ाई है। हम कहते हैं उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हम कहते हैं वो अकेला है, सबको वही खिलाता है और वही पालता है। और वो क्या कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बुखार वाला अलग है, चेचक वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, शादी कराने वाला अलग है, मुकदमे जताने वाला अलग है, बसों और ट्रकों की हिफाजत करने वाला अलग है। उसने तो इतना बड़ा यकीन किया कि जो अंगूर मुंह में था वो अंदर न ले गया। उलमा किराम ने लिखा है कि जब हमने उसके टुकड़े उठाए, उसके टुकड़ों से भी, बदन के टुकड़ों से भी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि मैं और आप कोशिश करें कि अंजाम बखैर हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, कब्र अच्छी हो जाए, हसर अच्छा हो जाए हर एक का। वरना ये दुनिया चंद दिनों का सौदा है। यहाँ लोग बहुत आए और बहुत चले गए, जब जाने लगे तो उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। किसी को मजदूब कहता है कि गंदुम बरो यद जाओ अद जाओ, गंदुम बरो यद जाओ अद मुकाफात अमल गाफिल मसो। नहीं, अगर गंदुम बीजोगे तो गंदुम पैदा होगी, जौ बीजोगे तो जौ पैदा होंगे, जो अमल करोगे वही तुम्हारे सामने आए। और बड़ी अजीब बात कही मजदूब ने, अल्लाह की करोड़ा रहमत नाज़िल हो, इन अल्लाह वालों पर बड़ी कमाई कर गई है। करे लगा सोचा कर 14 अगस्त हो या 18 अगस्त हो का कोई भी हो, तेरे सामने ये बात होनी चाहिए कि है यहां से तुझको जाना एक दिन, है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। जब जाना ही जाना है उस परवरदिगार की हुजूर में, मालिक कायनात के दरबार की पेशी में जाना ही जाना है, तो ये रात बर्बाद ना कर, ये दिन बर्बाद ना कर, ये कीमती सरमाया जिंदगी को बर्बाद ना कर। अल्लाह सुबारक व तआला मुझे और आपको अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले और हम सब के गुनाहों से दरगुदर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज़ साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।